Hello everyone, Neha ma'am here. So in the last videos we have discussed about chapter number 1 and chapter number 2 of GK class 7th. Yes, and now in this video we will discuss about we will continue chapter number 3rd. So now we will learn about the medicinal plants. In first chapter we have learned about medicinal leaves, that leaves which are used for the treatment of various diseases. Similarly, medicinal plant, the plant which are used for the treatment of various diseases. It means different parts of the plants. You know it has leaves also come under the category of plant part. लीव्स जो है वो भी प्लांट के पार्ट की कैटेगरी में आती है. सेम वे वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट प्लांट्स पार्ट विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ different diseases. Yes, so now first question you will form name. First question, write it, which you have to write in copy. Name the various parts of plant के various parts लिखिए which man used to get rid of illnesses in olden times. This is a question. Once again I am telling you, name the various parts of plants which man used to get rid of illnesses in olden times. आपको different parts of plant के parts लिखने हैं जो man यूज करते थे अपनी illness को से छुटकारा पाने के लिए, ठीक करने के लिए पुराने ज़माने में. ठीक है, इन ओल्डन टाइम्स. तो आंसर विल बी इन ओल्डन टाइम. फ्रॉम हियर ओनली इन फर्स्ट लाइन, इन ओल्डन टाइम मैन यूज रूट्स. पहले के ओल्डन टाइम्स में मैन क्या यूज करते थे? मैन यूज रूट्स, लीव्स, barks, seeds or flowers of plant to get rid of their illnesses. Okay, yeah, of illnesses. Got? Now come on question number 2. Question number 2 you will put match the following, or you can write in name the following. It can be asked in match the following, or it can be asked in name the following. You should know the answer. It can come in any form. First is you can write in copy as name the following. Copy में आप name the following की form में लिख सकते हैं. Okay, you can write in the form name the following. First, the plant gives atropine to dilate the pupil for an eye test. वो plant जो आपको atropine देता है डिलेट द पीपल ऑफ एन आई टेस्ट के लिए जो यूज होता है. ठीक है, आंसर इज फर्स्ट इज नाइट शेड. ओके, सो द नेम ऑफ द प्लांट इज नाइट शेड. नेक्स्ट, इट्स रूट कैन रिस्टोर द स्ट्रेंथ एंड विटैलिटी फॉर ओल्ड पीपल. इसके जो रूट्स होते हैं वो स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत देते हैं. ठीक है, किसे? ओल्ड पीपल को. देन आंसर विल बी the plant name is ginseng. The plant name is ginseng. It gives the strength to the old people. Its roots give the strength to the old people. Third, its leaves are used in worship and for curing cough and cold. इसके leaves used होते हैं worship पूजा करने के लिए और cough और cold को ठीक करने के लिए. Then third answer will be basil. ओके, basil leaves used in worship, पूजा में भी यूज होते हैं और curing the cough and cold also. Fourth, people with weak heart, वो लोग जिनके हार्ट दिल कमज़ोर होता है, use the drug digitaline made from its seed. वो एक ड्रग यूज़ करते हैं जो सीड से बना है. कौन सी सीड से बना है वो ड्रग? दैट इज द foxglove. फिफ्थ, द स्ट्रॉन्ग सेंटेड ऑयल, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटेड ऑयल ऑप्टेन फ्रॉम हिज लीव्स, जो लीव से ऑप्टेन होता है, एंड विच इज़ यूज टू क्लियर कोल्ड इन द हेड, जो क्या करता है कोल्ड को ठीक करने में हेल्प. जो भी आपके सिर का मतलब है आपका जो कोल्ड बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस कोल्ड से. ठीक है, आपको ट्रीटमेंट, उस कोल्ड की ट्रीटमेंट के लिए आपकी हेल्प करता है एक स्ट्रॉन्ग सेंटेड ऑयल जो ऑब्टेन होता है लीव से. कौन सी लीव से ऑब्टेन होता है? दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स यूकैलिप्टस. ओके, एंड दैट इज यूज टू क्लियर द कोल्ड इन द हेड. 6, दिस बिटर ऑयल इज अ ग्रेट जर्मिसाइड. ऐसा कड़वा ऑयल जो जर्मिसाइड की तरह जर्म्स को मारने के लिए हेल्प होता है. इट मीन्स sixth one is neem. Neem is used to kill the germicide.
7. कोकेन अ पेन किलर, कोकेन एक पेन किलर है विच कम्स अंडर द लीव्स ऑफ अ shrub, कौन से shrub के लीव से मिलता है हमें? कोको प्लांट, कोकोइन से समझ चाहिए, कोको प्लांट। नेक्स्ट 8. द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज नाउ सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड हुआ है, बट इट वॉज इनिशियली प्रोड्यूस नेचुरली फ्रॉम द मोल्ड, लेकिन पहले वो नेचुरली किससे प्रिपेयर्ड होता था? मोल्ड से, लेकिन अब वो सिंथेटिकली यानी कि केमिकल से प्रिपेयर्ड किया जा रहा है, पहले वो नेचुरली प्रिपेयर्ड होता था मोल्ड से। देन दैट इज notatum mold, that is notatum mold. This you have to write as this words only. Same, pain killing drug like morphine is obtained from this plant. पेन किलिंग ड्रग जो है जैसे कि मॉर्फाइन, वो किस प्लांट से ऑब्टेन है? द प्लांट नेम इज पॉपी, पॉपी, फ्रॉम पॉपी द पेन किलिंग ड्रग फॉर एग्जाम्पल मॉर्फाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस पॉपी प्लांट। 10th, क्विनीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, क्विनीन मलेरिया की ट्रीटमेंट में यूज होता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ दिस ट्री, किसके बार्क से ऑब्टेन होता है क्विनीन? क्विनाइन, आंसर इज योर चिंचोना, चिंचोना is a plant from which quinine is obtained. Quinine is used in the treatment of malaria and it is obtained, quinine is obtained from the bark of cinchona tree. Okay, so this first question is name the various parts of plant which man used to get rid of illnesses in olden times. Second question is match the following, but you will write in copy as name the following. Now third question you have to write from the interesting fact. Make the question write the question as given in the book. Which tree, ginkgo की जगह आप लिखेंगे क्वेश्चन में which tree is one of the oldest tree on earth. Why it is used? This is question. Which tree is one of the oldest tree on earth? Why is it used? Answer is किंगो ट्री इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्री ऑन अर्थ में सबसे पुराना ट्री जो है वो गिंगो है। इट्स रूट क्यों यूज होता है? क्योंकि उसके जो रूट्स हैं और जो बार्क है वो यूज होते हैं हेल्थ के का टॉनिक बनाने के लिए, ठीक है। एंड इट इज़ ग्रोन फॉर मेडिसिनल लीफ, और इसे इसलिए ग्रो करते हैं जिससे मेडिसिनल लीव्स मिल सके हमें। तो योर क्वेश्चन इज विच ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्री ऑन अर्थ, व्हाई इज इट यूज्ड? देन आंसर विल बी गिंको ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्री ऑन अर्थ. Its roots and bark are used to make a health tonic. It is grown for its medicinal leaves. Okay, so you can write till here only. Its root and bark are used to make the health tonic. Okay, so now next chapter number 4. Chapter number 4 is nature of plants. Okay, nature of plant, and now this you have to write in the form of fill in the blanks only in copy. So first one is dash is used to make medicine for stomach disorder, cough drops, mouth washes etc. मिंट यूज होता है मेडिसिन बनाने के लिए, जो स्टोमक आपके पेट में जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, या आपको कफ हो जाता है, या आपको माउथ वॉशेस हो जाते हैं, ठीक है, मुंह में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपके छाले हो जाते हैं, तो क्या यूज़ होता है? मिंट यूज होता है। द सेकेंड, द सीड्स ऑफ मस्टर्ड आर क्रश टू एक्सट्रैक्टिंग ऑयलिंग ऑयल, और जो सीड्स होते हैं मस्टर्ड के वो यूज़ होते हैं, उन्हें क्रश करके उसमें से कुकिंग ऑयल निकाला जाता है। थर्ड, अस्थमा एंड कोल्ड कैन बी क्योर्ड बाय यूजिंग द स्टेम इबहीड्रा। अस्थमा और कोल्ड सही हो सकता है कैसे? बाय यूजिंग द स्टेम ऑफ, तो इबहीड्रा जो ये आपका प्लांट है, इस प्लांट की स्टेम से। कैसे? स्टेम को बॉईल करेंगे, बॉईल करने के बाद जो इसका वाटर होगा दैट यू हैव टू टेक। फोर्थ, द सीड्स ऑफ इसाकोल जो इसाकोल होता है, द सीड्स ऑफ इसाकोल आर यूज व्हेन अ पर्सन सफर फ्रॉम अ कॉन्स्टिपेशन, या डायसेंट्री हो जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसाकोल का क्या सीड्स का हर पर्सन को क्या दिया जाता है? सॉल्यूशन दिया जाता था। सीड्स ऑफ इसाकोल आर यूज व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन एंड डायसेंट्री। फिफ्थ, नीम इज रेप्लिएट विद एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, नीम के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग बोथ सोप एंड टूथपेस्ट, इसलिए यूज होता है नीम कि इसका टूथपेस्ट भी बनता है, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस अ soap. It is used to kill the germs. 6. Every traditional Hindu's house has tulsi.
हर हिंदूज के घर पे तुलसी होती है, ठीक है। वाई? बिकॉज इट लीव्स हेल्प इन क्यूरिंग कफ एंड कोल्ड, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, वो हेल्प करती है फॉर क्यूरिंग द कोल्ड एंड कफ। 7. द रूट्स ऑफ रॉफोल्विया, जो रॉफोल्विया जो प्लांट है उसके जो रूट्स होते हैं आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। वो यूज होता है किसमें? हाई ब्लड, जो हमारा जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उसे ट्रीट करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए। 8. क्वेनाइन ड्रग, जो क्वेनाइन ड्रग होता है द मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, वो मलेरिया को सही करने का मेडिसिन है। इज ऑब्टेन फ्रॉम चिंचोना, वो कौन से प्लांट से ऑब्टेन है? चिंचोना से। 9. द ग्रीन फ्लैशी फ्रूट ऑफ आंवला, आंवला का जो ग्रीन फ्लैशी फ्रूट है आंवला, एंड आंवला इज रिच इन विटामिन सी। आंवला किसमें? आंवला में विटामिन सी रिच है, ठीक है। आंवला इज अ सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड इज यूज फॉर हेयर कंडीशनर, हेयर्स को, अपने हेयर्स को कंडीशनर देने के लिए आंवला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। द सीड्स ऑफ पॉपी, पॉपी के जो सीड्स हैं आर यूज एज अ पेन रिलीवर। द पॉट्स ऑफ वनीला, जो आपकी वनीला जो प्लांट है उसके जो पॉट्स होते हैं, उसके जो दाने होते हैं, गिव अस अ ऑयल, वो क्या देता है? ऑयल देता है। विच इज यूज एन एसेंस इन आइसक्रीम एंड मिल्क शेक, जिसकी स्मेल किस में यूज होती है? आइसक्रीम में और मिल्क शेक में। 12. द लीव्स ऑफ हीना, जो हीना के लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, हैव अ कूलिंग इफेक्ट, वो ठंडी ठंडी लगती हैं, ठंडी कूलिंग इफेक्ट देती है आपको। द लीव्स व्हेन क्रश्ड एंड अप्लाइड ऑन हैंड, जब इनकी पत्तियों को क्रश किया जाता है और अप्लाइड किया जाता है हैंड पे पीस के, ठीक है। लीव्स एंड ऑरेंज रेड कलर, तो वो लीव्स एंड ऑरेंज रेड कलर, तो आपको क्या आता है? मेहंदी का कैसा कलर आता है? ऑरेंज। ऑरेंज आके वो क्या हो जाता है? फिर वो डार्क ऑरेंज हो जाता है, देन इट कन्वर्ट टू रेड। रेड मीन्स महरून, ठीक है, वाइन कलर, डिपेंड ऑन द लीव्स। Okay, so now after 12 you have 13 you have to make from the interesting fact. Bronchitis, blank डालेंगे bronchitis में। bronchitis can be treated with the leaves of विसाखा, ओके। विसाखा का ट्रीटमेंट करने के लिए with the leaves of bronchitis यूज होता है। So here we have complete chapter number 3rd and 4th, and now chapter number 5 we will continue in the next video. Thank you, and you have to do in the copy in the form of fill in the blank only, and you have 13 fill in the blank including the interesting fact. And in chapter number 3rd he was having the 1 2 3 questions, one, ठीक है, for 3 questions to complete in copy as given in the book. Question is written and you have to complete in book also. So now we will continue chapter number 5 in the next video. Thank you.